Okay, dear friends, I am Dr. Gaurang Barot and I will take subject taxation in SY BCom semester 3. Okay, so in our last Google Meet we discussed about taxation. Okay, we discussed many things in Google Meets. So you are now aware and very clear about what is taxation. Okay, so here a few points we discussed about taxation that already we have covered. And during our Google Meet, you students also requested that try to discuss all the points in Hindi so you can easily understand. So we will go in a both bilingual language in Hindi as well as in English. Okay, to understand the subject taxation. First of all, what is taxation? So in our Google Meet we discussed that what is taxation. Okay, so in any country, the government taking a tax, okay, as a part of their income or any take a charge or extra amount added into that product or something else, and by that way that government taking some amount from the people by directly or by indirectly, that amount is known as a taxation. Taxation में हमने पहले चर्चा की थी कि taxation क्या है. तो कोई भी गवर्नमेंट उसके देश की पब्लिक के पास से कैसे भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसा कलेक्ट करती है एज अ पार्ट ऑफ टैक्स, उसे टैक्स के रूप में कलेक्ट किया जाता है. बराबर है. हमने ये भी डिस्कस किया था कि हु इज कलेक्टिंग टैक्स एंड फ्रॉम हुम. ओके, सो हु इज कलेक्टिंग टैक्स in any country, government is collecting tax, especially in India, government of India is collecting tax. Okay, so who is collecting tax and from whom, किससे टैक्स कलेक्ट किया जाता है. As we all know that tax is collected from the people of India. Indian people जो होते हैं उन लोगों को वो टैक्स भरना पड़ता है. बराबर है. जैसे जैसे डिटेल में सब्जेक्ट में जाएंगे इसमें बहुत सी चीजें डिटेल में आती है. जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे उसमें और रूल में डिटेल में हम जाएंगे. ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स वो भी हमने डिस्कस किया था. व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स. ओके, सो एनी गवर्नमेंट has to provide all the various facility to the people of that country. Okay, like road facility, light facility, water facility, education, free education facility in government school and colleges and etc. Health facility in government hospitals and etc. Various schemes to the farmers and other people and entrepreneur. So they required a handsome amount of money to spend behind the people of that country. That's why government is collecting tax from the people. Government has no source. Government has very limited source. Okay, there are various sources of government that we will discuss later on. But tax is one of the important source of the government to provide various facility to the people. Okay. Then history of income tax. As we all know that in India, okay, so in India we have 1857 war between the princely states and British government. ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर आई थी बिजनेस करने के लिए कंपनी के तौर पर, और फिर हमारे जो प्रिंसली स्टेट थे, रजवाड़े थे, उनके साथ उनका युद्ध हुआ था. 1857 का विप्लव हुआ था. एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट लॉस्ट दैट फाउट. ओके, दैट वॉर. सो उस टाइम पे वो हारने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में आ गई थी. वो पूरे राज करने लगी थी और उनको पैसा चाहिए था पूरा सेटअप करने के लिए, गवर्नमेंट सेटअप करने के लिए. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में फरवरी 1860 में इनकम टैक्स या टैक्स का सिस्टम डाला था. ब्रिटेन में जो सिस्टम था उसके आधार पर ही उन्होंने टैक्स का सिस्टम इंडिया में डाला था. ओके, और उसके बाद फिर इंडिया में फ्रीडम आई. ओके, फ्रीडम 1947 में हम फ्रीडम हुए. फिर 1950 में हमारा जो पूरा था वो संविधान बना. ओके, उसके बाद में इनकम टैक्स पर डिस्कस किया गया और बाद में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना. वो बाद में हम डिस्कस करेंगे. तो उस तरीके से इंडिया में जो है वो टैक्स का हुआ. पर टैक्स जो है वो बहुत पुराना कंसेप्ट है. मैंने गूगल मीट में आपको समझाया था कि टैक्स क्या है, बहुत पुराना कंसेप्ट है. आज से 2000 साल 3000 साल पहले इजिप्ट में, रोम में राजा जो थे वो टैक्स लिया करते थे. हमने भी पढ़ा है कि राजा जो थे वो टैक्स लिया करते थे. अकबर राजा थे, वो भी अपने स्टेट में टैक्स लिया करते थे. ऐसा हमने फिल्मों में भी देखा है. बराबर है. तो हमें पता है कि टैक्स जो है वो नया कंसेप्ट नहीं है. 2000 साल 3000 साल पुराना कंसेप्ट है. कौटिल्य ने भी अपने जो पुस्तक लिखे है उसमें टैक्स के बारे में बताया गया है. ओके, उसने भी, कौटिल्य ने भी बताया कि जो भी टैक्स राजा ले तो वो टैक्स एक लिमिटेड मात्रा में होना चाहिए, ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए, जिससे प्रजा को बहुत नुकसान ना हो, ऐसा टैक्स लेना चाहिए. और गवर्नमेंट जो राजा है वो फैसिलिटी दे सके, ऐसे उसका उपयोग करना चाहिए. ऐसी चीजें कौटिल्य ने भी बताई है.
So tax is a very old concept. Okay, so these are the basic part or basic things of income tax. And then after most important point, direct tax and indirect tax. Tax is basically divided or types. There are two main types or divided into two parts. That is direct tax and indirect tax. Now what is direct tax and what is indirect tax? Direct tax means government collecting tax from people directly, the person directly. Suppose I am paying direct tax to the government taking tax from me directly, okay, from my income, whatever income I generate. There are 5 heads of income, so from whatever heads I get income and government taking direct tax from my income, that is what we call a direct tax. Okay, direct tax means that whatever income I get. Another thing, tax on property, and another thing is professional tax. So these are the direct tax government taking from the people. Person has to pay directly from his own pocket. So that is known as a direct tax. Okay, and indirect tax means government taking tax not directly from the people, but tax is already added into various products and various services and various goods. Okay, अलग अलग तरीके के गुड्स होते हैं, सर्विसेज होती है, उस पे वो टैक्स डाला गया होता है और वो गुड्स और सर्विसेज हम लेते हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट वो टैक्स पे करना पड़ता है. दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स पे सबको करना पड़ता है. इनडायरेक्ट टैक्स पे सबको करना पड़ता है, जो कमाता है, नहीं कमाता है, जो भी चीज खरीदता है उसको पे करना पड़ता है, बराबर है. जबकि डायरेक्ट टैक्स क्या है, जो कमाता है या जिसकी प्रॉपर्टी है ऐसे लोगों को ही भरना पड़ता है. जिसकी इनकम की एक लिमिट है, ज्यादा इनकम होती है तो उसके आधार पर उसकी स्टेप है, पूरी स्कीम है, तो उस स्कीम के आधार पर उसको टैक्स भरना पड़ता है. जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, सबको भरना पड़ता है. क्लियर. इनडायरेक्ट टैक्स में आता है सर्विस टैक्स आता है, गुड्स टैक्स आता है. अभी नया हमारा जीएसटी आया है, तो यूनिट 4 में हमारा लास्ट यूनिट आएगा जीएसटी. तो हम जीएसटी भी सीखेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि जीएसटी जो सबसे बड़ा सोर्स है इनडायरेक्ट टैक्स का. क्लियर. तो वो भी हम उसमें देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं, बराबर है. तो ये था बेसिक कंसेप्ट, बराबर, जो हमने ऑलरेडी गूगल मीट में भी डिस्कस किया है. ओके, नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया. बराबर है. इनकम टैक्स जो है उसका कब कब इवेल्यूएशन हुआ, कैसे हुआ, इसके सोर्सेस क्या है, बराबर है. सबसे पहला है इनकम टैक्स एक्ट 1961. मैंने जैसे अभी बताया, इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना, बराबर है. उसमें एक्ट बना, उसमें क्या क्या चीज डिसाइड की गई. डिटरमाइन टैक्सेबल इनकम, के भाई टैक्सेबल इनकम कौन कौन सी मानी जाएगी. लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी कौन सी रहेगी टैक्स भरने की. असेसमेंट, टैक्स को कैसे असेस किया जाएगा, उसका पूरा फॉर्मेट है, हम आगे देखेंगे. अपील, बराबर, किसी का टैक्स ज्यादा कट गया है या किसी पर ज्यादा टैक्स डाला गया है और उसको कोई अपील करनी है तो वो अपील कैसे करेगा. पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ अथॉरिटी, बराबर. इनकम टैक्स की जो अथॉरिटी है, बराबर है, जिसको सीबीडीटी कहा जाता है, या उसकी जो भी मेन अथॉरिटीज है, वो अथॉरिटीज की पावर्स और ड्यूटीज सब क्या है, वो सब उसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिया गया है. उसके बाद दूसरा है इनकम टैक्स एक्ट 1962 के, जिसमें वेरियस रूल बनाए गए थे. इनकम टैक्स रिलेटेड वेरियस रूल्स बनाए गए थे और उस रूल्स के आधार पर, बराबर है, कि कोई भी चीज को हम पर्पस या इनकम टैक्स एक्ट या कोई भी चीज अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है तो वेरियस डिटेल्स रूल्स इससे 1962 के इनकम टैक्स एक्ट से हमें पता चलते हैं. थर्ड है एनुअल फाइनेंस एक्ट. आपको पता ही होगा कि हर साल बजट आता है, बराबर. फरवरी महीने में यूनियन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं, बराबर है, वो बजट लोकसभा में रखते हैं. तो वो बजट होता है, वो एनुअल फाइनेंस एक्ट का एक पार्ट है, बराबर है. तो उसमें भी टैक्सेशन के लॉज आते हैं. हर साल उसको लॉ को थोड़ा बहुत बदला जाता है. मैंने पहले ही कहा था कि आप जो भी बुक खरीदो वो हर साल लेटेस्ट बुक ही खरीदो. क्यों लेटेस्ट बुक खरीदो, क्योंकि इनकम टैक्स के रूल जो है वो हर साल बदल जाते हैं, बराबर है. बजट के हिसाब से रूल्स को क्या किया जाता है, हर साल चेंज किया जाता है, उसमें सभी चीजें चेंज होती है. तो वो उसका पार्ट है जो फाइनेंस मिनिस्टर, उसकी टीम काम करती है. सर्कुलेशन एंड क्लैरिफिकेशन बाय सीबीडीटी. सीबीडीटी का मीनिंग है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्स जो लेने वाला जो बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, बराबर. वो क्लैरिफिकेशन एंड सर्कुलेशन उसका होता है. बाइंडिंग अपॉन द इनकम टैक्स ऑथोरिटीज, बस एसएससी में गो टू द कोर्ट, बराबर है. सीबीडीटी तय करती है कि इस एसएससी को कितना टैक्स क्यों कैसे क्या भरना है, बराबर है. पर अगर कोई एसएससी सब डेफिनेशन आएगी उसमें, एसएससी में डिटेल में बताऊंगा. पर एसएससी मतलब सिंपल जो आदमी कर भरता है उसे करदाता को क्या कहा जाता है, एसएससी.
एसएससी अगर मानता है कि भाई सीबीडीटी ने मेरे साथ अन्याय किया है या ज्यादा टैक्स लिया है, तो वो अपील भी कोर्ट में भी जा सकता है, अपील भी कर सकता है और अपना टैक्स को बचा भी सकता है। तो सीबीडीटी बोर्ड के द्वारा सब सर्कुलेशन और क्लैरिफिकेशन टैक्सेशन का टाइम टू टाइम किया जाता है। जुडिशियल रूल्स, बराबर, जुडिशियल मतलब कोर्ट भी कई चुकादे ऐसे देती है, कोर्ट में भी किसी ने केस किया हो और कोर्ट ने जजमेंट दिया हो तो वो रूल बन जाता है बाद में। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रूल बनाया है, सुप्रीम कोर्ट में कोई डिसीजन आया है टैक्स के रिलेटेड, तो वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई रूल आया है तो बनाया है तो टैक्स के रिलेटेड, और अगर हाई कोर्ट ने बनाया है कोई इनकम टैक्स के रिलेटेड या टैक्सेशन के रिलेटेड कोई रूल, तो वो रूल पूरे उस स्टेट में पर्टिकुलरली एप्लीकेबल होता है। तो जुडिशियल सिस्टम में भी कोई कंपनी ने या कोई पर्सन ने केस किया हो गवर्नमेंट के खिलाफ और वो अगर जीता हो और वो नया रूल बना हो तो वो नया रूल एप्लीकेबल करना पड़ता है, बराबर है। तो आज हमने ये सब बेसिक चीजें सीखी जो ऑलरेडी हमने गूगल मीट में डिस्कस की थी, फिर से वो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बराबर है। बाद में आगे हम स्टेप वाइज स्कीम ऑफ इनकम टैक्स देखेंगे कि कैसे कितने पैसे पर कितना टैक्स भरना पड़ता है, उसके वेरियस एग्जांपल आएंगे वो देखेंगे। उसके बाद हम रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस किसे रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसके पास से टैक्स लिया जाएगा, तो वो सब चीजें बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।